Good morning, girl. Good morning, girls. आप लोगों को आवाज आ Good रही है? morning, ma'am. Good morning, ma'am. चलिए, हमने कल जनरल लीन तक पढ़ा था. फाइंडर ऑफ गुड्स पढ़नी है आज हमें, ठीक है? Good morning, ma'am. आप सब लोग अपना नाम लिख दीजिएगा चैट बॉक्स में फॉर अटेंडेंस. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. फाइंडर ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ पर्सन हु फाइंड्स गुड्स belonging to another and takes them into his or her custody is subject to the same responsibility as that of a bailee. The rights of a finder of goods are as follows. So अगर आपको कहीं किसी और का सामान मिलता है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट जस्ट लाइक द बेली इन अ बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, उनके जो भी राइट्स होते हैं या जो भी उनके ड्यूटीज होती हैं वो सब आपको फुलफिल करनी पड़ेगी. देन राइट ऑफ लीन. द फाइंडर ऑफ गुड हैज अ राइट ऑफ लीन ओवर द गुड्स ऑफ for his or her expenses. He or she can retain the goods against the owner until he or she receives the compensation or expenses, but the finder cannot sue the owner for such compensation or expenses because he or she incurred those expenses voluntarily.
Okay, so the finder of goods is also possesses the right of lien. अब example देखते हैं. Rita found a small puppy that was injured. She took him to a vet and got his injuries treated. ठीक है, तो रीटा को एक छोटा पापी मिला जिसको उसने वेट मीन्स a doctor who attends to animals, a veterinarian. So she took the dog, the small puppy, to be treated to the hospital. She kept the puppy in her house, and after a week, the owner of the puppy came to her house and asked her to return the puppy. ओके, तो एक हफ्ते तक उसने उसकी इंजरीज भी ट्रीट करवाई, मतलब उसे डॉक्टर के पास भी लेके गई और उसकी केयर भी करी. और फिर एक हफ्ते बाद जो उसका रियल ओनर था पपी का वो आ गए. Rita claimed compensation for the expenses she had incurred on the puppy's medical treatment, food and bedding. ठीक है, तो जो उसकी केयर करने के लिए, जैसे उसने उसका इलाज करवाया या उसे खिलाया और उसको सुलाया, जो भी चीज़ें उसके लिए उसने करी, उसके अगेंस्ट उसने उससे कॉम्पनसेशन मांगा जो उसका रियल ओनर था. The owner refused to compensate Rita for the expenses incurred by her, so Rita exercised the right of lien on the puppy. ठीक है, जब उसने कॉम्पनसेशन देने से मना कर दिया तो रीटा ने क्या किया, उसने राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज किया. मीन्स उसने वो पपी को वापस नहीं किया जब तक उसने पैसे नहीं दिए. आगे बढ़ते हैं. राइट टू सू फॉर रिवॉर्ड. The finder can sue for a reward which the owner has offered for the return of goods, and the finder can also exercise the right of lien till he or she gets the reward from the owner. Rita found a small puppy, but in spite of all her efforts, failed to find the owner of the puppy. Later, she found an advertisement in the paper that said that the puppy was lost and anybody who finds the puppy will be rewarded with a cash prize of rupees 5,000. ठीक है, तो वही एग्जाम्पल है. रीता को एक पपी मिला पर उसने उसके ओनर को ढूंढने की बहुत कोशिश की, बट शी वॉज नॉट एबल टू फाइंड हिम. बाद में उसने न्यूज़पेपर में ऐड देखा कि इस पपी के रिटर्न में 5,000 रुपीज़ उन्होंने देने की ऐड दिया हुआ है. Rita contacted the owner and told him about the puppy. The owner came and found that it was his puppy, but he refused to give the promised reward to Rita. तो ओनर ने आके देखा तो वो पपी उसी का था, बट उसने क्या किया, जो रिवॉर्ड उसने प्रॉमिस किया था 5,000 रुपीज़ वो देने से मना कर दिया. हेंस रीटा कुड एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन ऑन द पपी. तो ऐसे सिचुएशन में वो उसका पपी अपने पास रख सकती है एंड शी कैन ऑल्सो सू फॉर द रिवॉर्ड. सू मीन्स वो उसके अगेंस्ट केस भी फाइल कर सकती है. ठीक है. देन राइट ऑफ सेल. द फाइंडर ऑल्सो हैज़ अ राइट टू सेल द गुड्स. ठीक है, तो अगर मुझे किसी का सामान कहीं मिलता है और उसका ओनर नहीं मिल रहा है, so I can also sell the goods. I have the right to sell the goods to anybody. Then we come to termination of bailment. Termination means the end of the contract or a discharge of the contract. The contract of bailment can be discharged in the following ways. First, on the expiry of the period. When the bailment of good is made for a specific period and that period expires when the bailment also comes to an end. फिर एग्जाम्पल देखते हैं. मिस्टर गुजराल took a bike from his neighbor Srinath for
2 days as his bike had gone for repair. ठीक है, मिस्टर गुजराल ने उनके नेबर श्रीनाथ से एक बाइक ली 2 दिन के लिए, क्योंकि उनकी बाइक कहाँ गई थी? रिपेयर के लिए. He used the bike for 2 days and then returned the bike to श्रीनाथ. 2 दिन उन्होंने यूज करी और फिर श्रीनाथ को वापस कर दी. Thus the contract of bailment came to an end. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके उस टाइम को पूरा होने के बाद उन्होंने गुड्स को रिटर्न कर दिया, तो बेलमेंट टर्मिनेट हो गया. देन तो टर्मिनेशन फर्स्टली जब एक्सपायर हो जाए पीरियड, मतलब जितने टाइम के लिए आपने बेलमेंट किया है वो टाइम पूरा हो जाए, वो तब बेलमेंट टर्मिनेट हो सकता है. या फिर सेकेंड केस क्या है? ऑन द कंप्लीशन ऑफ द टास्क और द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव. When bailment of goods is made for a particular purpose and that purpose gets accomplished, then the bailment comes to an end. ठीक है, जिस पर्पस के लिए, जिस मोटिव के लिए बेलमेंट किया गया है, अगर वो पर्पस पूरा हो जाता है तो भी बेलमेंट टर्मिनेट हो जाता है. एग्जाम्पल देखते हैं. जग्गू टेक्स Manoj's mobile to make a call. Once the call has been made, the bailment comes to an end and Jaggu has to return the mobile to Manoj. ठीक है, simple example. Then next देखते हैं inconsistent uses of goods by the bailee. When bailment is made and the bailee does an act which is inconsistent with the terms of the contract, then the bailer can terminate the contract. Example, Rustam borrowed Kavi's car to go to Dehradun, but instead he took it to Kanpur. Hence, Kavi terminates the contract because of inconsistent usage of the goods borrowed. ठीक है, तो रुस्तम ने कवि की कार ली देहरादून जाने के लिए, बट उसने क्या किया? देहरादून नहीं गया, कानपुर चला गया. ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स डिसाइड हुई थी कि देहरादून जाएगा कार लेके, वो उसने क्या किया? उन टर्म्स के अगेंस्ट काम किया और कोई और जगह चला गया. इस चीज के, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कवि क्या कर सकता है? टर्मिनेट कर सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को. ओके, इसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स. देन नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. व्हेन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्ट्रॉयड, he becomes incapable of being used for the purpose of bailment. Then the bailment ends. Mr. Arora gave his shirt and trousers for dry clean at the dry clean shop. The same night, there was fire in the shop and the shirt and trouser of Mr. Arora was burnt. Hence, the contract of bailment came to an end. ठीक है, तो जिस चीज से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो चीज क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई. तो ऐसे सिचुएशन में भी बेलमेंट टर्मिनेट हो जाएगा. मिस्टर अरोरा ने अपनी शर्ट और ट्राउजर ड्राई क्लीनिंग के लिए दिया था, उसी रात को क्या हुआ? ड्राई क्लीन शॉप में आग लग गई, तो उसके साथ उनके शर्ट और ट्राउजर भी जल गए. तो ये सिचुएशन में बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा. देन ग्रेचुअस बेलमेंट, it can be terminated any time subject to conditions laid down in section 159. ठीक है, तो अब ग्रेचुअस बेलमेंट की जो हमने बात की थी पहले काइंड्स ऑफ बेलमेंट में, तो जब चीज़ें टर्मिनेट, जब बेली या तो गलत तरह से यूज़ करे गुड्स को, या गुड्स को यूज़ करने के बाद रिटर्न ना करे, इस तरह के सिचुएशंस में, या फिर अगर बेलर कभी भी चाहता है या बेली कभी भी चाहता है, तो ग्रेचुअस बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो कभी भी बेलमेंट को टर्मिनेट कर सकता है. ठीक है, बट अगर उस पर कोई एक्सपेंसेस अप्लाई हुए हैं बेली या बेलर के, या ऑपोजिट पार्टी के,
तो वो उन्हें पे करना पड़ेगा। जो टर्मिनेट करेगा उसे वो पैसे पे करने पड़ेंगे। जैसे हमने वो एग्जाम्पल देखा था कि एक पर्सन ने अपने फ्रेंड से कार ली थी 2 दिन को उनके रिलेटिव्स को घुमाने के लिए दिल्ली। तो उसने 2,000 रुपये का फ्यूल डलवाया था और वो 2,000 रुपये का फ्यूल उसने जिस दिन डलवाया अगले ही दिन उसका फ्रेंड क्या किया, आके कार वापस ले गया। तो जो पैसे उसने इन्वेस्ट किए फ्यूल डलवाने में वो उसके फ्रेंड को उसे पे करने पड़ेंगे। ठीक है। Then and lastly, death of bailor or bailee. In case any of the parties of the contract of bailment expires, the contract terminates. तो कोई भी एक पार्टी अगर मर गई तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। गीता हैड गिवन हर साड़ी टू संगीता फॉर डूइंग सम एम्ब्रॉयडरी work on the border of the sari. Sangeeta met with an accident and died the next day. Hence the contract of bailment came to an end. ठीक है, ये चीज समझ में आई सबको? Yes, ma'am. क्या? Yes, ma'am. मैम आपकी शो नहीं हुई है। मुझे आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी, बहुत कट रही है आवाज, फिर से बोलो। मैम आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? नो मैम, हो रही है मैम, हो रही है हम लोग को। हो रही है। फिर से शेयर कर देती हूँ, कोई बात नहीं। अभी ठीक है? Yes, ma'am. यस मैम अब दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो ये हमारा बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हमने इंडेमनिटी पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा इंडेमनिटी। अब इंडेमनिटी के Yes, ma'am. बाद का सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे जो कि है गारंटी। ठीक है, इंडेमनिटी हमने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लिया था, अब हमें क्या पढ़ना है, गारंटी पढ़ना है। तो सबसे पहले व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? A contract of guarantee according to section 126 of the Indian Contract Act is a contract to perform the promise of discharge or discharge the liability of a third person in case of default. The contract of guarantee consists of 3 parties. These are the surety, the principal debtor and the creditor. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज होती है मेनली। ठीक है, कौन सी? एक तो होती है श्योरिटी, एक प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। अब ये पार्टीज कौन सी होती हैं ये हम देखेंगे, मतलब इनका क्या मतलब होता है। श्योरिटी का मतलब होता है, हमने आप लोगों को याद होगा बेलमेंट में भी एक जगह पर हमने पढ़ा था कि उनकी सिमिलर ड्यूटीज होती हैं। श्योरिटी सॉरी इंडेमनिटी में पढ़ा था कि उनकी सिमिलर ड्यूटीज होती हैं टू श्योरिटी। तो अभी मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी, पहले हम पढ़ लेते हैं। A surety is a person who gives the guarantee to pay in case of default. ठीक है, अगर कोई पर्सन किसी से लोन ले और पे ना कर पाए तो थर्ड पार्टी जो कि श्योरिटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी वो लोन पे करने की। ठीक है, अब प्रिंसिपल डेटर का क्या मतलब हुआ? द पर्सन फॉर whom the guarantee has been taken by the surety is the principal debtor. ठीक है, तो जिस पर्सन के लिए गारंटी ली गई है वो कौन हो गया? प्रिंसिपल डेटर। ठीक है, जिसके लिए श्योरिटी ने गारंटी दी है कि अगर इस पर्सन ने पैसा पे नहीं कर पाया तो मैं पे करूंगा, तो वो कौन होता है? प्रिंसिपल डेटर। और क्रेडिटर कौन होता है? द पर्सन ऑफ गारंटी is a promise of guarantee is given to the creditor to whom the payment has to be made. जिसने पैसे दिए हैं वो हो गया creditor। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। Seema gives a loan of ₹50,000 to Aditi on the promise that Atul will repay the loan to Seema if Aditi defaults in her payment. This is a contract of guarantee. सीमा इज द क्रेडिटर। ठीक है, तो सीमा ने अदिति को एक लोन दिया 50,000 रुपए का। ठीक है, ऑन द प्रॉमिस दैट अतुल विल पे द लोन ऑफ सीमा। तो अतुल कौन हुआ? श्योरिटी। इफ अदिति डज नॉट इफ द अदिति डिफॉल्ट्स इन हर पेमेंट। ठीक है, अदिति ने लोन लिया सीमा से
और अतुल ने बोला कि अगर अदिति पे नहीं कर पाती वापस तो मैं पे करूंगा। तो सीमा हो गई क्रेडिटर, अदिति हो गई प्रिंसिपल डेटर और अतुल हो गया श्योरिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. हाँ, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब यहाँ पे देखो इन्होंने बताया भी है, सीमा इज द क्रेडिटर, अदिति इज द प्रिंसिपल डेटर एंड अतुल इज द श्योरिटी और गारंटर। English law defines guarantee as a promise that is made by one person to another to be collaterally answerable for a debt in case of default by the third person। ठीक है, वही चीज लिखी है कि अगर कोई एक पे नहीं कर पाएगा तो दूसरा पे करेगा। आगे बढ़ते हैं अपन। Essential features of a valid guarantee contract. A contract of guarantee can be performed only when certain essential elements of the contract are fulfilled. The following are the essential requirements of a contract of guarantee. ठीक है, contract of guarantees can be performed only when essential elements are fulfilled। ठीक है, तो अब क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो हम देख लेते हैं कि इनके बिना एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हम ये मानते हैं कि इट इज नॉट वैलिड और इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड वैलिड। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। A contract of guarantee must have all the essentials of a valid contract, like competence of parties, free consent, and consideration to make the contract valid. But there are certain exceptions। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो भी टर्म्स होते हैं वो यहाँ पर भी फुलफिल होने चाहिए। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया गया है, जिसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या होते हैं। फर्स्टली कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज, मतलब दोनों पार्टीज कॉम्पिटेंट हो, उन मतलब उनके राइट में हो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना। ठीक है, देन फ्री कंसेंट, किसी के दबाव में आकर वो इस कॉन्ट्रैक्ट को ना कर रहे हो। और थर्ड क्या है, उसमें और भी जो भी बाकी कंसिडरेशंस हैं, जैसे कुछ ना कुछ एक पर्सन को दूसरे पर्सन को देना होता है और दूसरे पर्सन को भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे लोन की बात की, अगर जो हमने पहले एग्जाम्पल लिया उसमें एक पर्सन ने लोन लिया, दूसरे को वापस देना था। ठीक है, अब कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, मतलब किन किन केसेस में वो चीज़ फॉलो नहीं होगी। द प्रिंसिपल डेटर may not be competent to contract। if he is not competent, the surety will become the principal debtor and will be liable personally to make the payment। अब मान लो कि प्रिंसिपल डेटर जो है वो कॉम्पिटेंट पार्टी नहीं है, कॉम्पिटेंट पार्टी नहीं है, मान लो किसी भी तरह के उनके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस हैं या यहाँ कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। कई सारे वैलिडिटी पॉइंट्स होते हैं, जब आप फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे तो उसमें देख लेना। तो अगर वो कॉम्पिटेंट पार्टी नहीं मानी गई है, आपको बस ये याद रखना है कि कॉम्पिटेंट पार्टी अगर नहीं है प्रिंसिपल डेटर, तो क्या होगा, जिसने श्योरिटी दी है ना, जो गारंटर बना है, वो ही प्रिंसिपल डेटर कंसिडर कर लिया जाएगा। और जो भी पैसा प्रिंसिपल डेटर ने लिया है उधार, वो फिर अब पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बन जाएगी, श्योरिटी की बन जाएगी, उसको पे करने की। Then a surety that makes a promise for the benefit of the principal debtor need not be given consideration। Any promise that a surety makes is sufficient consideration for giving a guarantee। A surety that makes a promise for the benefit of principal debtor need not be given consideration। तो जिसने श्योरिटी दी है या जो गारंटर बना है उसको कोई भी तरह का कॉम्पनसेशन देना या कंसिडरेशन देना ज़रूरी नहीं है। Any promise that the surety makes is sufficient consideration for giving a guarantee। ठीक है, उसको ना तो पैसे देना ज़रूरी है ना ही लेना, सिर्फ उसका प्रॉमिस इम्पॉर्टेंट होता है कि उसने बोला है कि मैं गारंटी दे रहा हूँ या मैं श्योरिटी बन रहा हूँ।
नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, देखो। Bhanu asked Billu to deliver 50 watches to him on credit. Billu agrees and Braj guarantees the payment for the goods. ठीक है, तो यहाँ पे भानु और बिल्लू दो पार्टीज हैं। भानु ने बिल्लू से बोला कि 50 वॉचेस उसको दे ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो भानु हो गया प्रिंसिपल डेटर और बिल्लू हो गया क्रेडिटर, क्योंकि बिल्लू ने उसको वॉचेस दी है क्रेडिट पर। ब्रज कौन हो गया? गारंटर या फिर श्योरिटी। द प्रिंसिपल, द पेमेंट ऑफ गुड्स, द पेमेंट फॉर द गुड्स, ब्रज स्टेट्स दैट ही वुड स्टैंड guarantee for the payment in consideration of Billu's promise to deliver the 50 watches. ठीक है, तो ब्रज ने क्या बोला कि अगर बिल्लू वापस नहीं कर पाता है, मतलब पे नहीं कर पाता उन 50 वॉचेस के लिए, तो वो वॉचेस वापस कौन डिलीवर करेगा उसको? ब्रज। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है, देखिए। आकृति सेल्स 100 पेन्स टू अभिमन्यु। संजय रिक्वेस्ट्स आकृति नॉट टू सू अभिमन्यु फॉर at least a year. If he cannot pay, he also promises that in case of default, he would be responsible and would make the payment to आकृति। तो आकृति ने क्या किया? 100 पेन सेल किए टू अभिमन्यु। Sanjay requests Akriti not to sue Abhimanyu for at least a year if he cannot pay. संजय कौन हो गया? संजय हो गया श्योरिटी। संजय ने बोला कि अगर 1 साल तक वो पैसे नहीं दे पाता है तो उसको आप 1 साल का टाइम दो, तब तक उसके अगेंस्ट कोई केस वगैरह मत करना। He also promises that in case of default he would be responsible and would make the payment to आकृति। ठीक है, संजय ने ये भी बोला कि 1 साल के बाद भी अगर वो पेमेंट नहीं कर पाता है तो फिर मैं पे करूंगा। आकृति agrees not to go to the court for the payment. This is sufficient consideration for Sanjay's promise. ठीक है, तो जो उसने प्रॉमिस किया, आकृति ने उस प्रॉमिस को पूरा किया कि वो 1 साल तक कोर्ट नहीं गई। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। टुन्नू promises to deliver his old car to मुन्नू at a fixed price। ठीक है, तो इन दोनों ने एक कार को बेचने की बात हो रही है दोनों में। तो टुन्नू ने अपनी पुरानी कार मुन्नू को बेचने की बात की एक प्राइस पे, एक फिक्स प्राइस पे, उसको नेगोशिएट नहीं करना है। लेटर जानू without any consideration agrees to pay for the car if Munnu does not pay। ठीक है, तो जानू कौन हुआ? श्योरिटी हो गया, टुन्नू हो गया क्रेडिटर और मुन्नू हो गया प्रिंसिपल डेटर। दिस इज अ वॉइड अग्रीमेंट। क्यों ऐसा? ऐसा क्यों? बताओ बताओ। What, ma'am? देखो, टुन्नू ने अपनी पुरानी कार बेचने की बात की मुन्नू के को। ठीक है, अब यहाँ पर हम किसी भी तरह के पैसे लेने की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि इन्होंने एक कार को बेचने की कॉन्ट्रैक्ट किया है एक दूसरे से। ठीक है, अब जानू को कोई भी कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है उसके अगेंस्ट, क्योंकि वो तो श्योरिटी बन रहा है। बट उसने फिर भी बोल दिया कि मैं मुन्नू की कार की पेमेंट करूँगा। ठीक है, मान लेते हैं कि जानू उसका भाई है या उनके कोई रिलेटिव है, फ्रेंड है, जो उनकी जगह पर पेमेंट करने वाले हैं। तो इस तरह के सिचुएशन में वो श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं हो रही है, तो ये एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है या वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक है, हमें मेनली ये चीज़ इस वाले एग्जाम्पल पे फोकस करना है, बिकॉज दिस वन इज़ मोर क्लियर। ठीक है, आप इससे ज़्यादा अच्छे से समझा पाओगे कि कैसे तीनों पार्टीज को कौन सा कंसिडरेशन मिल रहा है। जैसे आकृति ने कंसिडरेशन के तौर पे संजय के प्रॉमिस को पूरा किया कि आप कोर्ट मत जाना साल भर तक। ठीक है,
चलो अब ये अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। टुमारो विल ट्राई टू फिनिश गारंटी, ठीक है। तो उसमें आपका ये क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा कि गारंटी और इंडेमनिटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ओके, यस चलिए अब अगर इनको रीड कर लेना, जितना भी हमने पढ़ा है आज उसे रीड कर लेना और अपने नोटबुक्स में आप लिख लीजिएगा अपने वर्ड्स में। अगर कोई डाउट होता है तो फिर मेरे से पूछ लेना, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। यस, मैम वो जो सीसी का जो असाइनमेंट लिखना है वो जरूरी है कि असाइनमेंट कॉपी में ही लिखना हो? बेटा कितनी बार मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप किसी भी रजिस्टर में लिख लो। मैम A4 रजिस्टर या नॉर्मल रजिस्टर? क्या फर्क पड़ता है बेटा कि किसमें लिखो, आपका लिखना इम्पोर्टेंट है। ऐसे स्टूपिड क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम लोग फर्स्ट ईयर में, आगे ग्रेजुएशन में। हाँ, थर्ड फोर्थ क्लास के बच्चों की तरह अननेसेसरी बार बार एक ही चीज सब लोग पूछ रहे हैं। हंड्रेड्स ऑफ गर्ल्स आर कॉलिंग मी एवरी नाउ एंड देन कि एक ही क्वेश्चन पूछने के लिए किस में लिखना है। अरे इतना बड़ा इशू क्यों है कि किस में लिखना है? नॉर्मल पतली पतली रजिस्टर्स आते हैं, उसको ले लो, उसमें लिख लो सब अलग अलग। अगर तो 2-4 पेज एंड में बच भी जाएंगे तो कौन सी बड़ा डील हो जाएगा। मैम। और कुछ किसी को पूछना है? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, मैम जो फॉर्मेट दिया है उसको लिखना है कि लिख लो, तुम्हें लिखना है लिख लो, प्रिंट आउट निकालना है प्रिंट आउट निकाल लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब चल जाएगा। यस बस मैम, थैंक बस लगा देना ऊपर, यस मैम, ठीक है। यस मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू बस।